Hello everyone, so the question is, consider the lines given by L1 is given as x plus 3y minus 5 is equal to 0, L2 is given as 3x minus ky minus 1 equal to 0, L3 is 5x plus 2y minus 12 equal to 0, and we have to match the following columns. So the first part is L1, L2 and L3 are congruent if. Okay, firstly I'm writing down the equations of the lines which are given to us. So yeah, equation of L1 is x plus 3y minus 5 is equals to 0. Then equation of line L2 is 5x or L3. So this is 2 is 3x minus ky minus 1 is equal to 0, and equation for line L3, that is 5x plus 2y minus 12 is equal to 0. So now the first part is L1, L2 and L3 are congruent if. So the first part is, let's solve the first part. For solving the first part, I'll be solving equation 1 and 3. So solving L1 and L3. So how I'll be solving, I'll be multiplying the first one with 5. So it would be 25x plus 15y minus 25 is equals to 0, and the equation will remain as it. So basically, yeah, it would have been 5 here with multiplied equation 1 with 5. So it's 5x plus 15y minus 45. It's first equation, and this remain as it is, that is 5x plus 2y minus 12 is equal to 0. Now subtracting it, I get 5 cancels with 5, and we are left with 13y plus, so it would be minus 13 equal to 0. So from here I get y is equals to 1. Substituting this y in any of the equation, let us substitute it in equation number 1. So I get here x minus 3 minus 5 is equals to 0. It would have been plus here, so it implies that x is equal to 2. So therefore we can see that the coordinates are, that is x comma y is 2 comma 1. So therefore I can say that L1, L2 and L3 are congruent if. So L1, L2 and L3 are congruent if 2 comma 1, that is point of intersection, lies on L2. So substituting the values, I'll be getting, this is 3 into 2, that is 6, minus k minus 1 is equal to 0. So it implies k is equal to 5. So it implies L1, L2 and L3 are congruent if. Let's see the given option. So the correct is option A. A part goes with k equal to 5, that is option A. So I can write that option. S is the correct option. Now let's have a look at the second part. So in the second part, we are asked one of L1, L2 and L3 is parallel to at least one of the two if. So it would be possible if either L1 is parallel to L2 or L3 is parallel to L2. So these are the two conditions. Then we can write 1 upon 3 is equal to 3 upon minus k, or if L3 is parallel to L2, then we can write 3 upon 5 is equal to minus k upon 2. So here in the first thing, I have compared the x and y coefficients of L1 and L2, and here I have done similarly for L3 and L2. So it implies that the values of k comes out to be, k would be minus 9 here, and k would be equal to minus 6 upon 5 here. So these are the possible values. Let's have a look at the options. So it is k equal to minus 9 and k is equal to minus 6 upon 5. So it means that P and Q are correct in this case. So it implies P and Q are the correct options in this case. Let's proceed with the third part of the question. So it is asked that
L1, L2, L3 form triangle if. So L1, L2, L3 form a triangle if they are not congruent or not parallel. So it will be done if they are not parallel and congruent both. So it would be done if, now we can see in the first and the second parts that in the first case L1, L2 and L3 are congruent, in the second case they are parallel. So it means that K should not occupy values, that is 5 when they were congruent, and -9 and -6 upon 5, because in the other case it was parallel. So let's see, we are left with K is equal to 5 by 6. So it means that it goes with option number R. Option R is the correct option. Now let's look at the last part of the question. So it is asking that L1, L2, L3 do not form a triangle if. So in the previous part, that is part number C, we discussed that they will form a triangle if they are not parallel or congruent. So here I am writing that they will not form triangle if they are either parallel or congruent. So when it is possible, if K would be equal to 5, -9 and -6 upon 5. So it means that all the options except R is true. So it means that P, Q and S are the correct options. So P, Q, S are the correct options. So I hope it is clear. Thank you. Hello student, the question is the set of lines ax plus by plus c is equal to 0 where 3a plus 2b plus 4c is equal to 0 is congruent at the point. देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें यहाँ पर दो लाइन की इक्वेशन गिवन है और क्या बोला है, ये लाइन क्या है, कॉन्करेंट है एक पॉइंट पर, तो हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम देखें हमें इक्वेशन क्या गिवन है लाइन की, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 गिवन है, एंड थर्ड इक्वेशन गिवन है दैट इज 3a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करें, सेकेंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, अगर हम 4 से इसको क्या करते हैं डिवाइड कर दें तो ये जाएगा 3/4a प्लस 2/4b प्लस c इज इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं 3/4a प्लस 1/2b प्लस c इज इक्वल टू 0. अब देखिए अगर ये कॉन्करेंट है तो इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो कॉमन होंगे. तो अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट इज 3/4, एंड y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2. अब क्योंकि हमें गिवन है कि ये क्या है, कॉन्करेंट है, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे, दैट इज 3/4 एंड 1/2. तो ये आपका आंसर हो गया. थैंक यू. The question is, prove that the altitudes of a triangle are concurrent. So first we consider a triangle which is A, B and C, and the altitudes are D, E, F. Let us suppose this point is O. It is sufficient to prove that OC is perpendicular to AB. So let us suppose O be the origin. O be the origin, and suppose the position vector of A is OA is equals to vector A, and position vector of B is OB is vector B, and position vector of C is OC vector C. Now AD is perpendicular to BC, and this implies AO is also perpendicular to BC. So we have AD is perpendicular to BC, which implies OA is perpendicular to
BC vector. So this implies vector OA dot vector BC is equals to 0. So this implies vector A dot vector C minus vector B is equals to 0, because BC vector is vector C minus vector B. So this implies vector A dot vector C minus vector A dot vector B is equals to 0. This implies vector A dot vector C is equals to vector A dot vector B. This is equation 1. Now vector BE is perpendicular to CA. Here BE is perpendicular to CA. So this implies vector OB is perpendicular to CA. So we have vector B dot vector A minus vector C is equals to 0. So this implies vector B dot vector A minus vector B dot vector C is equals to 0. So this implies vector B dot vector A is equals to vector B dot vector C. This is equation number 2. So by 1 and 2 we get vector A dot vector C is equals to vector B dot vector C. So this implies vector A dot vector C minus vector B dot vector C is equals to 0. So this implies vector A minus vector B dot vector C is equals to 0. So this implies vector OC is perpendicular to vector BA. So we are done. हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर टू लाइन है 5x माइनस वाई इक्वल टू 1 पे परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 5 यूनिट का एरिया बना रहा है, ठीक है। तो हमें L का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक। तो देखो सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन क्या है, 5x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 1, ठीक। तो इसको अगर m यहाँ पर हमारा स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है हमारे पास 5। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 जो होता है वो -1 होता है अगर परपेंडिकुलर होता है लाइन। तो m2 हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1/5। ओके, m2 हमारे पास -1/5। तो नए लाइन की क्वेश्चन क्या होगा, y इक्वल टू -1/5 x प्लस c आ गया। तो यहाँ पर से हमारा क्या आ जाएगा, 5y प्लस x इक्वल टू 5c आ गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, इस पे एक्स एक्सिस बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। अब इसका हम लोग क्या दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा हमारे पास। मान लो जो हमारा इक्वेशन है वो मान लो कुछ ऐसा था हमारा, ठीक ना। वो 5 यूनिट का एरिया बना रहा है, ठीक। तो एरिया जो एक्स इंटरसेप्ट होगा क्या होगा हमारे पास, एक्स इंटरसेप्ट होगा 5c/5, एक्स इंटरसेप्ट होगा 5c और y इंटरसेप्ट हमारा क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा सिर्फ हमारा c होगा, ठीक है। तो हमारा एरिया कितना दिया, एरिया इक्वल टू दिया है हमारे पास 12 स्क्वायर यूनिट। एरिया तो हमारा वही दिया है जो हमारे पास बना रहा है, वो कितना, सॉरी 5 स्क्वायर यूनिट दिया है। एरिया हमारा दिया है 5 स्क्वायर यूनिट, ओके। एरिया का फॉर्मूला और क्या होता है, हाफ मॉडुलस ऑफ हाफ ऑफ डेल्टा इंटू एक्स इंटरसेप्ट 5c इंटू c, ठीक। इसका मॉडुलस अरे किसके बराबर दिया है, 5 के बराबर दिया है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर से हो जाएगा हमारे पास 5c स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ, मॉडुलस प्लस माइनस से ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 10। तो यहाँ से c हमारे पास क्या आ जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू, एक बार आप लो +2 आ जाएगा, दूसरी बार क्या आ जाएगा दूसरी बार क्या आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू -2 तो रिजेक्ट करो, इमेजिनरी तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, रियल में पढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा
प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 2। ओके, ये हमारे पास एक आ गया c इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो हमारे पास यहाँ से जो, तो यहाँ पर से हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, 5x प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या था, दैट इज इक्वल टू 5c था, 5y था यहाँ पर, मुझे लगता है 5y प्लस x था, सॉरी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5y प्लस x। अब c की जगह वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5y कल टू एक बार रूट 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 5 रूट 2, और दूसरी बार माइनस रूट 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5y इक्वल टू माइनस ऑफ 5 अंडर रूट 2। ओके, ये दो वैल्यूज आ गए हमारे पास दो लाइन के। ठीक, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, लेट पी क्यू आर बी द राइट एंगल आइसोलिसिस ट्रायंगल। ठीक है, और जो राइट एंगल है वो क्या है, एट पॉइंट P 2 1। इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन QR is 2x plus y is equal to 3, then the equation representing the pair of lines PQ and PR। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल क्या है 90 डिग्रीज का। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा पॉइंट है P, और ये हमें क्या दे रखा है 2 1 दे रखा है। ठीक है, तो अगर P है तो ये हमारा Q है और ये R है। ठीक है, और इसकी जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसकी दो साइड्स बराबर होंगी। तो दो साइड्स कौन सी बराबर होंगी हमारे पास, ये वाली। ठीक है, अगर ये दोनों साइड्स बराबर है तो इसके जो ऑपोजिट वाले एंगल है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अब लेट्स सपोज ये एंगल क्या है x है, तो ये भी कितना होगा, x होगा। हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स किसके बराबर होता है, हमारा 180 के। तो यहाँ से 2x प्लस 190 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 2x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई, 45 डिग्रीज आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल आ गया। अब देखो कि जो ये लाइन है ना, ये जो लाइन है हमारे पास Q, इसका जो स्लोप है, स्लोप होती है, लेट्स सपोज इसकी जो लाइन की स्लोप है वो हमारे पास क्या है m1, m मान लेते हैं इसको। ठीक है, लेट्स सपोज इसकी जो स्लोप है हमारे पास m है, वो किसके बराबर है हमारे पास, -2/1। हमें पता है कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। तो यहाँ से m क्या निकल के आया, -2 निकल के आया हमारे पास। अब मान लो जो QP है ना, जो लाइन QP है उसकी जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ QP। ठीक है, वो हमारे पास किसके बराबर है, m1 के। ठीक है, अब हमें पता है कि दो लाइंस की स्लोप के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये दो लाइंस है हमारे पास, क्या है, एक 45 डिग्री से एंगल बना रही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो tan 45 है वो हमारे पास किसके बराबर है, m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे जो हमारा m1 है, m है वो कितना है हमारे पास, -2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, 1 इज इक्वल टू m1 माइनस ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस -2m। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा इसका मॉड। ठीक है, अब इसको ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। द मॉड ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, -2m1 इज इक्वल टू m1 मॉड ऑफ m1 प्लस 2। ठीक है, अब इसको खोलने के लिए, मॉड को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी। एक तो ये बनेगी दैट 1 माइनस 2m1 इज इक्वल टू m1 प्लस 2। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 माइनस 2m1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 3m1 इज इक्वल टू -1 विच इम्प्लाइज m1 इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस m1, यहाँ पे क्या था प्लस, तो यहाँ पे प्लस -2
ठीक है, और यहाँ m1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, अब एक तो हमारे पास m1 आ गया -1/3 आ गया, और दूसरा हमारे पास m1 क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब यहाँ से क्या पता चलता है कि जो हमारे पास इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो दो स्लोप्स है वो स्लोप्स वो हैं कि जो लाइंस है उन दो लाइंस की स्लोप है जो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक जो लाइन है हमारे पास उसका जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है, -1/3, और जो दूसरी स्लोप है उसकी जो दूसरी लाइन है उसकी जो स्लोप है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास स्लोप भी है और हमारे पास पॉइंट भी है। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशंस निकाल सकते हैं लाइन की। तो सबसे पहले हम अगर क्यूपी लाइन देखें, जो क्यूपी लाइन है उसकी जो स्लोप है, क्यूपी लाइन की जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है, -1/3, और जो उसका पासिंग पॉइंट क्या है वो क्या है, 2, 1। और इसकी लाइन लिखे, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, y - 1 = -1/3 × x - 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y - 1 = -1/3x + 2/3। ठीक है, विच इम्प्लाइज, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को कर देते हैं तो 3y - 3 = -x + 2। ठीक है, विच इम्प्लाइज x + 3y। ठीक है, x + 3y माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 = 0। तो ये तो हमारी इक्वेशन आ गई क्यूपी की। अगर हम PR की देखें तो PR के पास क्या है, स्लोप हमारी 3 है और जो पॉइंट है, पासिंग पॉइंट है वो 2, 1 है। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, y - 1 = 3x - 2। तो y - 1 = 3x - 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3x - y। ठीक है, वो उस साइड चला जाएगा -5 = 0। तो एक हमारे पास ये आ गई। अब हमें क्या निकालना है, पेयर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन QP एंड PR की निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x + 3y - 5 × 3x - y - 5। ठीक है, = 0। तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² + 3 -3y² + 8xy - 20x - 10y + 25 = 0। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस QP एंड PR। थैंक यू।